Hello everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. I am Nupur, your legal guide, mentor and coach. So I'm seeing that a lot of people who are changing these streams, like आपके पास में या तो science bio था, science maths था, now we are focusing more on the subjects that are relatively related to humanities. या फिर आप NEET की preparation कर रहे थे, JEE की preparation कर रहे थे, बट कोप अप होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. कुछ लोगों को नहीं होती है. वेल एंड गुड. फॉर पीपल हु आर एक्चुअली फेसिंग डिफ़िकल्टीज, वन थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड इज कि जो प्रिपेयर आप कर रहे थे दैट इज़ इन द पास्ट नाउ. Now it is a blank slate that we are going to write something very much informative, and that's going to decide our future goals, right? Future goals decide करेंगे. So what to expect when you change your preparations from either NEET to JEE or your science background to your this background. So the first thing is पूरा environment नया हो जाएगा. आपका उसमें जो प्रिपेयर चल रहा था वो बिल्कुल अलग होता है, यहाँ अलग होता है. न्यू चेंजेस आते हैं. फिर आते हैं एक चीज़ में कि दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो हैं, कुछ ना कुछ तो उन दोनों में भी सिमिलर होगा ही होगा. सो देयर बी अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज़ अ टोटली न्यू एनवायरनमेंट फॉर पीपल हु आर फ्रॉम नीट एंड JEE. आपको पता है कि दी maybe I'm this very much objectively saying this, but बहुत ज़्यादा रटाफिकेशन होता है. This doesn't follow the same in our CLAT exam. तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप पहले किसी और चीज़ की प्रिपेयर कर रहे थे. Now it's CLAT. You cannot be comparing the two as in now when you're preparing. So it's only going to bring you some confusion, but we don't want that confusion, right? So आप क्या करेंगे, आपको खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा to this new environment that is working for you. अभी हम CLAT की तैयारी कर रहे हैं, NEET and JEE हो गया. We do not have to ask anything related to that, right? So क्या होता है, इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजी. इसमें स्ट्रैटेजीज बहुत रोल प्ले करती है. आपको बुक में दिया हुआ है वो पढ़ना है और आंसर क्वेश्चंस वही आएंगे, ऐसा नहीं होता है. देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला फॉर इट. 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं. 10 तक का बेसिक वो मान रहे हैं कि आपको इतना चाहिए, आना चाहिए 10th 11th 12th तक का, बट इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम योर NCERT बुक्स, राइट? इट इज़ कमिंग इन द पैसेज बेस्ड फॉर्मेट. आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी. फिर आता है आपके उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते थे लाइक बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स. ये इसमें QT के फॉर्म में आता है, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दे यूज टू कम इन योर सब्जेक्ट्स. So whatever was happening is in the past now. We're going to take some similarities and then focus on with CLAT, right? So new environment है, you should adapt to the new environment. फिर what are the new changes? There are a lot of new changes because the whole pattern is different. The pattern is different in some ways but similar in other ways also, right? So the first thing is new subjects. So आपके उसमें जैसे मैंने बोला, you have typically the subjects that you study in your class 11th and class 12th. Here the subjects are most 5 subjects that the class is giving it, 5 passage based. So starting from your English to your GK. आपके GK नहीं आता है NEET और JEE में, whereas CLAT में GK is a major part. It is not only coming in general knowledge but also in legal. कुछ भी जो करंट में हो रहा है वो आपके लीगल में पैसेज आ सकता है, इंग्लिश में आ सकता है, CR में आ सकता है. सो GK plays a very vital role in this. Then is legal reasoning. Legal reasoning में भी आपको ध्यान रखना है क्या है क्या नहीं है. दे नॉट गोइंग टू आस्क लॉस. उन्होंने खुद ने बोला है, कंसोर्टियम ऑफ NLUs में ये दे रखा है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू व्हाट द लॉज आर, बिकॉज वी आर गोइंग टू टीच यू दैट. वी आर गोइंग टू गिव यू सिचुएशन वेयर यू बी द जज, whether you can judge it correctly or you cannot judge it correctly, right? So then is your CR, right? Logical reasoning, critical reasoning के form में आता है वो, and then is quantitative techniques. So even your math portion is in DI forms, which is passage based में ही आएगा, वो आपको DIs बनाना पड़ेगा, which is totally different from your NEET and JEE. Right? So to start yourself, start doing a lot of mocks. मैं आपको बता भी रही हूँ क्या डिफरेंस है and how to solve it even. धीरे धीरे मॉक करेंगे, you'll get used to it. You are not used to writing big essays, big answers, but 12th में आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, बहुत अच्छे से उन्हें आंसर किया है, right? So you'll get used to it, but don't be so hard on yourself. Then is second pattern of exam. पैटर्न ऑफ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है आपका NEET और JEE का. आपने मार्क किया, टिक किया, मार्क किया, टिक किया. जितना क्वेश्चंस है उतना ही उस हिसाब से मार्किंग स्कीम होती है. तो CLAT में ऐसा नहीं होता है. CLAT में पैसेज बेस्ड आएगा सब कुछ, राइट? एंड देन देयर विल बी +1 मार्क्स फॉर द करेक्ट एंड -2
0.25 मार्क्स माइनस 0.25 मार्क्स फॉर योर रॉन्ग आंसर्स, राइट। तो उसका पैटर्न भी अलग है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि बड़ा पैसेज आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो basically it's not about what you read and remember, it is about how you read it and how you interpret it and answer it. रट्टाफिकेशन डेफिनेटली नहीं चलेगा, इट्स इम्प्रूविंग योर रीजनिंग एबिलिटी। सो हर चीज़ में अगर आप देखेंगे दिस लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, सो ये सारा रीजन देख रहे हैं वो आपका, राइट। सो स्किल सेट होता है, एक प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है, तो मोस्टली आपको किस पे फोकस करना पड़ता है, more time is given to practice and lesser time is given for the concepts. आप लोग हमेशा books रिवाइज नहीं करते रहेंगे, rather you should be clear with your concepts and then you should start practicing, because as and soon you practice, that's how you're going to develop with your गुड स्किल्स। आप लोग उतना ही ज़्यादा अपने माइंड को शार्पन अप करेंगे कि रीजनिंग कैसे डेवलप होगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे स्कोर्स आएंगे। देन इज टाइम मैनेजमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड फोकस नाउ ऑन इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ही वीडियो अलग से बना हुआ है, इफ यू गाइज वांट प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं। अर्लियर इट यूज टू बी 150 क्वेश्चंस, नाउ इट इज़ रिड्यूस टू 120 क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं। तो उसमें पैसेज भी पढ़ना है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। नाउ दैट्स द ट्रिक, दैट टेस्टिंग योर टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। Whereas NEET and JEE में भी टाइम मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स एनीथिंग डज रिक्वायर्स टाइम मैनेजमेंट, सो अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो सेम वेज, बट इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज कि उसमें पैसेज बेस्ड आता है, राइट। ये जो भी फॉर्मेट है इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट। जो JEE और NEET का आता है, एनी डे इफ यू ask any person who's preparing for both of them, who had prepared for both of them and succeeded in CLAT, they will say कि ये पेपर CLAT का बहुत ईजी आता है। सी द ईजी ट्रिक है कि आपको कुछ भी रटना नहीं है, जो भी पैसेज बेस्ड आ रहा है उसी में से आंसर आएगा। 15 लाइन के पैसेज में से 5 क्वेश्चन बना रहे हैं वो बड़े बड़े, उसी को 5 क्वेश्चन को आंसर करना है, दैट्स इट, राइट। इट्स नॉट फ्रॉम समवेयर एल्स दैट यू हैव टू मेमोराइज एंड रिमेंबर एंड देन राइट इट डाउन, राइट। जीके के कॉन्सेप्ट में ये हो सकता है, बट नॉट एनीथिंग अदर देन जीके, राइट। देन इज देयर आर सम कॉमन थिंग्स बिटवीन CLAT and JEE. फर्स्ट इज ऑफकोर्स बोथ आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब उसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, बहुत सारा कंपटीशन होगा आपका, एंड यू वांट टू सिक्योर वन सिंगल प्लेस फॉर इट, राइट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन विथ यू। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको हमेशा पढ़ने की चाह होनी चाहिए। आज आपने सोचा, वीडियोस देखे हमारे टॉपर के या जो भी आपको अच्छा लगा, यू थॉट ओके लॉयर्स आर सो गुड, आई विल बी अ लॉयर, आई विल गिव CLAT, बट इफ यू डोंट हैव दी ज़ील कंटिन्यूसली, आपने एंड में अच्छे दोस्त बना लिए, आप पार्टी कर रहे हैं, आप मज़े कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट टेक यू फॉरवर्ड इन एनी सेंस। कंटिन्यूस ज़ील एंड एंथुजियाज्म होना बहुत ज़रूरी है। देन इज टू अंडरस्टैंड स्किल्स नीड टू बी फॉर प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। फिर आपने ये समझ लिया कि ये चीज़ें पीछे रह गई और अब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग उस पर एबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा। दोनों ही पार्ट्स में इफ़ देयर इज समथिंग दैट यू डोंट नो, सो यू गोइंग टू प्रॉब्लम सॉल्व इट, नो, you'll apply, okay, this I know, this is definitely not, then choose one option from them. So that's how it's going to help you. दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, राइट। तो हर किसी का वो जो कॉमन ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन हु सक्सीड वाला होगा वो सारे आपको रखने पड़ेंगे। परसिस्टेंस रखनी पड़ेगी, हार्ड वर्क रखना पड़ेगा, मेहनत उतनी की उतनी करनी पड़ेगी। जिस चीज़ में कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी हार्ड, राइट। टू बी अनएम्प्लॉयड इज हार्ड, बट टू वर्क इज even tougher, but you have to decide what tough is your tough, right. Then is to learn how students have persistence and resilience. Of course आपको persistently काम करना पड़ेगा, resilient रहना पड़ेगा किस चीज़ों में, वो सारी चीज़ों में जो कि आपको नहीं चाहिए, like avoiding distractions, phone use नहीं करना है, parties में नहीं जाना है, weddings attend नहीं करना है. So this is something that's going to help you. Second, the last most important thing is हार्ड वर्क एंड प्रेशर विथ वर्क एथिक्स. अभी हर टाइम पे हर किसी को एग्ज़ाम देते हुए प्रेशर होता है, लाइक स्ट्रेस होता है. हाउ आर वी गोइंग टू डील विद द एग्ज़ाम, हाउ आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द एग्ज़ाम, हम कैसे करेंगे, विल इट बी आर हो जाएगा नहीं होगा, मेहनत काफ़ी करी नहीं करी. ये सब चीज़ें अगर आप काम माइंड है, यू मच फोकस दैट आई जस्ट हैव टू गो एंड गिव माई एग्जाम एंड उसके बाद में ऐसे होगा, राइट. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे.
एंड देन इज हैंडलिंग वर्क एथिक्स। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आप जो भी काम में लग रहे हैं उसमें आप एथिकली काम कर रहे हैं। इफ़ यू स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, आप 5 घंटे सिर्फ पढ़ रहे हैं, 2 घंटे जब खेल रहे हैं तब सिर्फ खेलने में फोकस है, 5 घंटे फिर से प्रैक्टिस करें तो सिर्फ प्रैक्टिस में फोकस है, यू नॉट डिविएटिंग फ्रॉम योर पाथ्स, राइट? अंडरस्टूड? सो फिर आते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। कैसी होती हैं? पहले कुछ भी चालू करें तो उससे पहले क्या वो चीज़ है, what we are stepping into, we should know that, right? So the first thing is understanding the CLAT exam pattern. क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस होता है, प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से सीख कर सकते हैं। यू शुड नो योर सेल्फ। आप में कॉन्फिडेंस कब आएगा? when you aware of things around you, right? when you know that the dangers around you are this, you'll be very much confident in walking, right? देन इज डेवलप अ स्टडी प्लान। हर चीज़ एक प्लान से चालू होनी चाहिए। स्टडी प्लान करिए, मैं इतने टाइम में जीके का बैकलॉग क्लियर करूंगा, मैं इतने टाइम में मेरा रीजनिंग करूंगा, इतने टाइम में ये करूंगा। सो दिस शुड बी क्लियर, राइट? ये सब एकदम पर्टिकुलरली क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। फिर आता है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन की एरियाज, जैसे मोस्टली लीगल एंड जीके एंड क्यूटी। दैट्स व्हाट सेट्स इट अपार्ट। इंग्लिश एंड रीजनिंग बहुत सारे लोग कर लेते हैं, इन तीनों में अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे, पूरे फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। लीगल रीजनिंग, इट्स ओके, नॉट ऑल दी स्टूडेंट्स रीड लीगल रीजनिंग, इवन दो दे हैव ह्यूमैनिटीज। जीरो से चालू करो और फिर अपने आप को ऊपर लेके चलो। दैट्स व्हाट द फाउंडेशन मेक्स द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड यू शुड फॉलो दैट। एंड द लास्ट वन इज ऑफ कोर्स सीक सपोर्ट। We as your counselors, we as your teachers, mentors are always readily available. For every YouTube comment, there's a single reply. Every YouTube comment asking about something, हम हमेशा reply करते हैं. Do not feel it hesitance. Like, I think it's the easiest way. Nobody knows who you are and you can easily ask questions and they can be solved. Nothing to be hesitant about it. So आप questions पूछें, हमसे पूछें, contact us directly. What should be done? Contact your mentors directly कि I don't feel like I can do that. It's a total shift. I think it's a 180-degree shift. What should I do? Everything can be done with help, right? So अगर आप help लेते रहेंगे तो चीज़ें आसान होती रहेंगी. So that is it for today, and comment down below. Are you changing your stream? How are you liking the CLAT preparations? Thank you.